So the topic of this panel discussion is harnessing the potential of MG Narega for inclusive and sustainable livelihoods. तो इसको moderate करने के लिए we have with us Shri Debundu Sarkar sir. He is former Commissioner MG Narega West Bengal, a retired IAS officer. He led MG Narega in West Bengal for over 7 years, driving rural development and Swachh Bharat initiatives. We welcome you on the stage, sir. अब हम स्पीकर्स की ओर बढ़ते हुए वी हैव आवर फर्स्ट स्पीकर मिस अनीता पूर्ति. मिस अनीता पूर्ति मुखिया हैं करलाजोड़ी पंचायत झारखंड से, जिन्होंने अपने पंचायत में नरेगा आधारित विकास, पेंशन और आवास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया. आपका स्वागत है मिस पूर्ति जी. Our next speaker is Mr. Anjani Kumar Singh. Mr. Anjani Kumar Singh is a senior program officer in Bill and Melinda Gates Foundation with over 25 years of experience in rural livelihoods, agricultural value chains, and community institution building. We welcome you on stage, Mr. Anjani Kumar. Now, I would like to invite our esteemed speaker, Mr. Charanjit Singh, sir. He is the former Additional Secretary of the Ministry of Rural Development, Government of India. We welcome you, sir, on the stage. हमारे साथ हमारे फोर्थ स्पीकर हैं फादर रेजिमोन. He is the Secretary of Bastar Sevak Mandal, a development professional committed to empowering tribal communities through sustainable and environment-sensitive initiatives. We welcome you on the stage, sir. Our last speaker is Mr. Rajendra Sahade. He is the State Quality Control Officer of MG Narega, Government of Maharashtra. Sir, आपका स्वागत है. कृपया करके मंच पे आएं. For discussion, we have Ms. Ashwini Kulkarni ma'am, Head of Pragati Abhiyan, a leading voice in MG Narega implementation. She is also working closely with communities, researchers, and policymakers. We welcome you, ma'am. We have our second discussant, Dr. Aruna Pandey. BRLF में ये हेड हैं रिसर्च, MEN एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्टिकल्स के. सो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरुणा पांडे. नाउ आई रिक्वेस्ट देवेंद्र सरकार सर टू काइंडली टेक दिस सेशन फॉरवर्ड. सभी को नमस्कार, जोहार. आज यही सेशन में हम लोग चर्चा करेगा मनरेगा कैसे वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे नरेगा का कंट्रीब्यूशन कैसे आगे बढ़ाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए नरेगा का रोल क्या होना चाहिए और क्या होता है वो भी हम लोग चर्चा करेगा. तो पहले मैं थोड़ा खुद की अनुभवी को थोड़ा चर्चा करेगा. इनफैक्ट आई सर्व्ड एज कमिश्नर मनरेगा इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर 7.5 years. तो वो जो 7.5 वर्ष का काम है वहाँ पे ही हम लोग थोड़ा अनुभव मेरे पास भी आया है. अनुभव ये थी
The Manrega is mostly a wage employment program. It was a wage employment program. So wage employment में asset को बात होता था, but asset was secondary. Usually this is how it happens. Community participation हम लोग बोल रहा है, but community participation also doesn't happen in most of the cases. We have our annual action plan exercise. We call it labor budget exercise in Manrega. In that labor budget exercise, Gaon Sabha and all those things are there. But at the same time, those are mostly led by the government functionaries and the panchayat officials. Maybe in states like Bengal, where panchayat system बहुत ही strong है, वहाँ पे पंचायत का प्रधान जो है मुखिया, उसका भी थोड़ा strong role भी थे. But at the same time, as I said, participation was low. Community participation, समुदाय का participation low थे. एक, दो wage focus थे, तो naturally asset focus नहीं थे. So at that point of time, I joined in 2012. In 2015, we had an initiative with BRLF in the hills of Darjeeling. So at that time, Darjeeling एक ही district थे. उसके बाद ये दो डिस्ट्रिक्ट हो गया है, दार्जिलिंग है और कालिम्पोंग है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वही डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, हम लोग एक काम शुरू किया है बीआरएलएफ के साथ में, मनरेगा और बीआरएलएफ के कोलैबोरेशन में. एनजीओ वाज देयर, सीएसओ पार्टनर्स वर देयर. वहाँ पे हम लोग शुरू किया है एक स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट. स्प्रिंग तो है ही वहाँ पे, झरना विकास, धारा विकास. सो सिक्किम में धारा विकास हो चल रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट विथ BRLF. And then we thought, okay, we are doing this in the hills, but what about the actual tribal belt of Bengal? That is Purulia, Bankura, Jhargram, West Midnapur part, Birbhum part, West Bardhaman part. There are 6 such districts. There are 55 such blocks. वहाँ पे probably we need to do something which ultimately can reach out to the villages. Very good examples were there. Between 2012 to 2016, there were very good examples of good work being done in Manrega. But those were isolated islands. वो बिच्छिन्न द्वीप थे. तो वो जे द्वीप टाइप को जे इंटरवेंशन थे, वो इंटरवेंशन के जोड़ना बहुत ही जरूरी थे. So we decided that, okay, can we do something with the civil society organizations coming forward? BRLF immediately said that, okay, we are ready to do it. We are ready to support the government of West Bengal in doing this. And while providing that support, we will bring several civil society organizations in the field. So there were 7 such civil society organizations identified by BRLF. 7 संस्थाओं को आइडेंटिफाई किया है. वो 7 संस्थाओं के साथ में वो जे उसका जे प्रोसेस जो है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, उसके बाद में वो संस्थाओं को आइडेंटिफाई किया है. उसके साथ जुड़े हुए मनरेगा, BRLF, 7 civil society organizations, and the entire Manrega implementation team in the field. So पंचायत भी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो, सब साथ कर मिलकर काम करना शुरू किया है. So 55 blocks, 450 plus 470 plus gram panchayats. Very huge kind of a geography in which he started. Because again, civil society organization जो है ना, उसको again isolated island type. They have their areas of excellence, but very small areas. So we thought that, okay, if those civil society organizations can take up the scale that the government usually takes, government has its scale, government has its fund,
At that point of time, our annual expenditure under Manrega was around, say, 6,000 crore of rupees. We ended with 10,000 crore, and then the entire thing crashed. For the last 3 years, no fund is going to Bengal. That's a different story altogether. But what I want to tell you is that, okay, 5,000 to 8,000 crore of rupees, and those 5,000 crore of rupees were like isolated island, I said. Here some good work, there some good work, there some mediocre work, there almost no work at all. So that kind of thing used to be happening. So how Manrega, it has its architecture. Manrega always tells, okay, let us do something in which स्थायित्वशील जो एसेट जो है ना, संपद क्रिएट करने का भी तकलीफ तरीका वहाँ पे है, लेकिन that doesn't happen in most of the cases. So if the civil society organizations, they have two very important kind of attributes. One is they have very good reach, community समुदाय के जाने का they have very good reach, A, and B, they have that expert knowledge, because the entire thing was done in watershed areas. So they have very good knowledge of watershed related activities. So these two taken together, and the government has fund, the government has intention. So why don't we come together and work together to build a newer kind of area where actually Manrega reaches out to the last mile people and can do some very good exemplary work. So that we started in 2017 with BRLF. Immediate, our slogan was today's wage for tomorrow's livelihood. आज भी wage तो मिलेगा ही, नरेगा में wage तो focus तो है ही है, but we will be kind of looking at wage in such a way that by using that wage, we will be able to achieve livelihood. चरणजीत जी सुबह बोला है, जो मनरेगा मुक्त भारत हम लोग को चाहिए. We also thought that Manrega mukt, those 55 blocks will be reaching out, because ultimately at some point of time, how much Manrega gives? 100 days work in a year for a family. If a family has 3 adult members doing work, 33 days. So for more than 330 days, they have to look for other avenues. So Manrega is not a very big contributor if you consider individual households. But if asset is created, in that case Manrega can be the biggest contributor. ये हमारा realization था. And on the basis of that realization, we started working. And we thought that, okay, Manrega में another problem, another challenge है, ये एक साल का program. All government programs are, most of the government programs are साल का program. एक साल का program है. तो Manrega में what we call labor budget, पंचायत के में what we call GPDP, all are एक साल का project. But if you want to create impact on a sustainable level, in that case probably you need to consider a larger period of time. So that is why we decided that we will be doing DPR, detailed project report हम लोग को करना पड़ेगा, and that will be for 4 years. 4 वर्ष का DPR करना पड़ेगा, and there is a specific instruction from the government, from the state government to the districts. District में हम लोग instruction भी दिया है, ये 70% of the work मनरेगा में जो भी काम आप करेगा उसका 70% उपयोग करना ही पड़ेगा from this DPR. So that itself become a very important intervention. And certainly, and naturally, when 70% from this is in sync with the Government of India guideline that 60% or 70% will be on water and kind of jal and jameen ke liye. So that is again NRM activity. So NRM activity and our DPR are mostly syncing. So that is why we said that, okay, they will have to do this. And that ultimately paid. That resulted in certain good things. So we started there, and then it was taken.
Government of India came, different people from different states were taken there to Ushad Mukti to see. The Ushad Mukti name was also given by us, keeping in mind this is salvation from barrenness. Ushad is barren. कोई चाष नहीं होता है वहाँ पे. So that kind of a place, how we can salvage वो मिट्टी को, yes, मिट्टी को how we can salvage. So we kept that in mind. So keeping that in mind, we did it, and then it was taken to different other states. जीविदा हसा झारखंड में हुआ, मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में भी हुआ. So all those, and Odisha may be a very big project PRLF. So keeping all this in mind, आज हमारा चर्चा रहेगा how to take it forward, how to take it further. So हमारा साथ एक मुखिया ही है, पूर्ति जी. So मुखिया के she has worked in the field like anything, and वो जो विमेन मेट का जो सवाल जो डिस्कशन हुआ सुबह, वो भी उसका वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन भी है उसके लिए. विमेन मेट, मेट्स फोरम, and how this participation came and how the people are looking at Manrega now after this Jivida Hasaka intervention. So we would request Purti ji to talk on that. सबको मेरा जोहार, नमस्कार. मेरा नाम अनीता पूर्ति है. मैं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड की एक करलाजुड़ी पंचायत की मुखिया हूँ. मेरे पंचायत के अंतर्गत 5 गांव आते हैं. तो शुरुआती दौर में ऐसा हुआ था जब हमारे यहाँ बीआरएलएफ की टीम काम करने गई थी, तो हमारे यहाँ नाम रखा गया था इनका जीविदा हसा. तो जीविदा हसा का अर्थ हमारे आदिवासी में होता है जीवन, जल और जमीन. तो इस तरह से जब हम लोग योजना बताने गए तो वो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता था और लोगों को बताने में भी. तो शुरुआती दौर में क्या होता था, लोग योजना लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब मैं मुखिया थी या मुझसे पहले जो मुखिया हुए, मैं मुखिया बनने के बाद तो हमें बीआरएलएफ की काफ़ी मदद मिली. तो मुझसे पहले कभी भी मनरेगा का जो योजना होता था वो सफल नहीं हो पाता. या डोभा हो, या बागवानी हो, या मेड़बंदी हो, पैसे निकल जाते थे लेकिन योजना कंप्लीट कभी नहीं होता था. जिसकी वजह से जब हम लोग योजना लेने के लिए जाते भी थे ना, लोग बोलते थे कि केवल ज़मीन का बर्बादी है, इसमें केवल लोग कमाना चाहते हैं, ज़मीन की बर्बादी है और हम लोग अपना ज़मीन क्यों बर्बाद करेंगे. तो लोग देना नहीं चाहते थे. और उस समय में लोग कम ही योजनाओं को जानते थे. जैसे मेड़बंदी भी प्रॉपर नहीं होता था, कच्चा नाला वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता था, और डोभा तो कभी सक्सेस ही नहीं होता था. तो लोग बोलते थे कि ये सब सक्सेस होता ही नहीं है, तो इसमें ज़मीन बर्बाद करना उचित नहीं है, हम लोग नहीं देंगे. इसके बाद जब हमारे यहाँ बीआरएफ की मदद से, और मैं भी जब मुखिया बनी, मुझे भी उनके द्वारा काफ़ी सपोर्ट किया गया, योजनाओं के बारे जानकारी दी गई. और मैंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ पे जितने सारे मुखियागण हुए उन लोगों का कहना था कि हम लोग मेट चेंज कर देते हैं. तो मेट चेंज कर देते हैं, नया मेट रहेगा, फिर वो ज़्यादा नहीं जानेंगे, फिर हम लोग अच्छा से काम करेंगे. इस तरह से होता था, हम लोग ज़्यादा लाभ लेंगे. तो मुझे लगा कि नहीं, मैं खुद मुखिया नहीं हूँ, मुझे काम का एक्सपीरियंस नहीं है. अगर मैं मेट भी बदल दूँ तो फिर काम कुछ होना ही नहीं है, फिर वही हो जाएगा जो पहले हुआ था. और मुझे काम करना है, भले मुझे फल की चिंता हो या ना हो. तो मैंने क्या किया, किसी मेट को मैं चेंज नहीं की. मेरी जितनी मेट पुरानी थी वो मैंने सारी मेट को रखी. इसके बाद हमारे यहाँ जैसे योजनाओं का चयन किया गया, तो मेरे यहाँ भी जैसे चलता है SCT, TCB, 30-40 मॉडल, मेड़बंदी, डोभा, तालाब, बिरसा हरित ग्राम योजना, जो हमारे यहाँ विशेष बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है. मेड़बंदी के सीजन में जब भी वहाँ से जाते हैं, जब रोड पार करती हूँ, मैं खुद भी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जब मैं रोड से पार होती हूँ, तो जब देखती हूँ तो इतना अच्छा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि इस तरह का काम अगर सब जगह हो. हमारे यहाँ जैसे मेड़बंदी का नज़ारा दूर से ही देखने को मिलता है. अब जब मेड़बंदी सक्सेस
सक्सेस हो रहा है तो लोगों की उपज वहाँ से 2 गुना 3 गुना आ रहा है। लोग खुश हो रहे हैं कि हमें मनरेगा का जो योजना है वो सक्सेस हो रहा है और इससे फायदे भी हो रहे हैं। इसके बाद अभी जो हम लोग जैसे डोभा यूज कर रहे हैं, डोभा हम लोग बना रहे हैं। हमारे कार्यकाल में किसी भी डोभा को ऐसा हम लोग पेंडिंग नहीं छोड़े हैं। हमारे कार्यकाल में जो भी हुआ ये बीआरएलएफ की मदद है, हमें बहुत सपोर्ट है और उनके द्वारा ही हमें सपोर्ट करने की वजह से हम सारे काम को सक्सेस किए हैं। और अभी हमारे यहाँ जो डोभा है लोग उस डोभा में केवल नहाने के लिए यूज नहीं करते हैं, उस डोभा के किनारे किनारे दीदी बाड़ी जैसी योजनाओं को चलाते हैं। दीदी बाड़ी छोटे पैमाने पे लोगों को हम लोग सब्जियों की खेती के लिए ये महिलाओं को देते हैं, क्योंकि ये विशेष एनीमिया को रोकने के लिए इस योजना को चलाया गया है। तो ये हम लोग महिलाओं के नाम पर उसमें कुछ इस तरह के होता है 20 या 22 हज़ार के लगभग उसका जो एस्टिमेट आता है और ये 2 साल के लिए हम लोग देते हैं, क्योंकि वो 1 साल में तो ख़त्म योजना नहीं होगा। तो 2 साल में हम लोग 2 साल के उस योजना को धीरे धीरे उनका में पेमेंट जब डालते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अभी तो हमें काम के साथ दाम भी मिल रहा है और वो उससे फायदा भी उठा रहे हैं। घर में भरपूर मात्रा में सब्जी का इस्तेमाल भी कर पाते हैं और उसको बिक्री भी करते हैं। अब महिलाएं बिक्री भी करना शुरू कर दी है और डोभा में लोग मछली भी पालना शुरू कर दिए हैं। ये लाइवलीहुड के तहत जो बीआरएलएफ की टीम जो लाइवलीहुड के तहत काम करती है, इससे हम लोग उनको मत्स्य भी प्रोवाइड कराते हैं। तो लोग मछली पाल रहे हैं और उससे अच्छी इनकम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो आम बागवानी होती है, मैं ग्राम सभा में बैठी हूँ तो मेरे यहाँ क्या है कि बुजुर्ग लोग, काफ़ी शिक्षित लोग हैं मेरे गांव में, मेरे पंचायत में, तो बुजुर्ग लोगों की डांट भी पड़ती है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे डांट भी पड़ती है जब काम गलत होता है। तो जब मैं ये बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जब हम लोग कहते थे कि आप लोग आम बागवानी का स्कीम लीजिए, मिक्स फ्रूट प्लांटेशन लीजिए, तो लोग क्या बोलते थे, नहीं कभी ये सक्सेस ही नहीं होता है। और इस बार हम लोग बीआरएलएफ की मदद से इतना अच्छा हम लोग प्लांटेशन सक्सेस किए हैं। अब जब हम लोग सुनते हैं, पहले होता था कि नहीं उसको 50 वृक्ष दिए थे, 50 में केवल 5 जीवित है, पहले की ये स्टोरी थी। और एक बुजुर्ग ने मुझे सभा में डांटा भी था, नहीं ये सक्सेस नहीं होता है, आप लोग अभी नए हैं, अभी कुछ नहीं पता, तुम लोग तो आधी उम्र की, हम लोग जानते हैं। आज उन लोगों का सर झुकता है मेरे आगे, उन लोगों का सर झुकता है। अब ऐसा हो गया है कि 50 में जो 45 मरने वाले वृक्ष होते थे ना, आज 5 मरते हैं और 45 जीवित रहते हैं। और हम लोग उस 5 वृक्ष को भी गिनती करके वो ब्लॉक में सबमिट करते हैं और वो 5 वृक्ष भी उनको हम लोग दिलाते हैं। अब ऐसा हो गया है कि लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ योजना और चले। जो लोग डोभा लेना नहीं चाहते थे, आज वे लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर होता है, हम लोग डोभा, हमारे यहाँ भी डोभा कोड़िए, हमें भी डोभा चाहिए। इस तरह का हो गया है। अब ये एससीटी जैसी योजना है, एससीटी टीसीबी, इस बार मैं एससीटी योजना विजिट करने जब गई थी, वहाँ पे खुद किसान ये मुझे बता रहा है कि एससीटी योजना के चलने से इस बार हमारा धान इतना अच्छा हुआ है कि मुझे लगता है कि मैं दोगुना इससे फसल निकालूंगा, इससे जो धान होगा वो दोगुना होगा। तो सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ इस तरह का काम चल रहा है। और पहले जैसे वहाँ पे किसी नई चीज़ को लोग नहीं चाहते थे लगाना, तो हमारे ये बीआरएलएफ की ओर से मदद से हम लोग हमारे एक किसान हैं, उनको हम लोग स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए दिए थे। जब वो एक स्ट्रॉबेरी को 4 रुपए की कीमत से जब बेचा, तो वो अब आकर के सभा में बोलता है कि इतना फायदा हुआ इसमें। अब लोग चाहते हैं कि मैं भी करूं। इस तरह से अब पंचायत में सब लोग मनरेगा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो लाभुक हो। और हमारा जो रोजगार सेवक काम ही नहीं करता था, अब वो हमारे यहाँ बीआरएलएफ और हमारी मदद से जो काम चल रहा है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है, खुश रहता है कि हमारे यहाँ का बहुत नाम है, हाँ करलाजुड़ी पंचायत, हाँ मैं हूँ रोजगार सेवक। जबकि वो दूसरे पंचायत में कभी काम किया ही नहीं, हमारे पंचायत में अब दौड़ भाग करके काम करता है। और हमारे यहाँ ऐसा भी है
मेट फोरम का गठन किया गया है। मैडम लोग बता रहे थे अभी, मेट फोरम में इस तरह से मतलब मेट का एक संघ बनाया गया है, और मेट के संघ बनाने से और उस संघ की जो अध्यक्ष है वो मेरे ही पंचायत की मेट है, काफ़ी एक्टिव है। और हमारी पंचायत की जितनी मेट है, हम लोगों ने जीविदा हसा के साथ, बीआरएलएफ के साथ मिलकर उन लोगों को इतना ट्रेंड किया है कि वे लोग ऑन द स्पॉट कहीं भी अगर कोई बोल रहा है कि हमारा पेमेंट नहीं पहुंचा है, कहाँ गया पैसा हमारा, आप किसी और का में पेमेंट किए, तो तुरंत अपना मोबाइल खोल करके साइट में जा करके चेक करके बताती है कि आपका पेमेंट यहाँ लटका है, आपका पेमेंट उस अकाउंट में गया है, देखिए वो बैंक ये है और लास्ट डिजिट ये है। तो इस तरह से मतलब अब ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कि मतलब लोगों को उनका पेमेंट मिलने में दिक्कत हो, क्योंकि सभी लोगों को हम लोग डिजिटल नॉलेज दे दिए हैं, तो सब लोग जानते हैं कि कैसा खोजना है, किस ऐप में खोजना है, गूगल में जाएंगे तो किस साइट में जाएंगे। तो मेरे यहाँ जो मेट है सभी को इतना नॉलेज है कि मैं नहीं भी रहूंगी और पंचायत में कोई इन कर गया तो एक मेट ही सभी को सारा आंसर दे देंगी। और ये मेट फोरम होने से, और ये मेट फोरम की अध्यक्ष मेरे पंचायत की जो है, इनके मेट फोरम गठन होने से इन लोगों को अब जैसे कि ब्लॉक में भी पहले जो सम्मान नहीं मिलता था, पहले जब ये मेट जाते थे डिमांड डालने या कुछ भी, ऐसा होता है कि रोजगार सेवक उन पर ध्यान नहीं देते थे। अब ये हो गया है कि इन लोगों को मान सम्मान मिलने लगा है। जब वो ब्लॉक जाती है तो हाँ ये मेट है, इनका एक पहचान बन गया है इनके फोरम होने से। और जब ग्राम सभा में जाती हैं तो इन लोगों को ग्राम सभा में भी अब वैल्यू दिया गया है, इन लोगों की बात को सुना जाता है, रखा जाता है, पहले ये नहीं था। अब मेट फोरम की होने से मतलब जब एक दूसरे वे लोग जब मुसीबत में होती हैं तो तुरंत ही वे लोग फोरम का सहारा लेती हैं। तो इस तरह से उन लोगों में बहुत अच्छा एक नॉलेज भी हो जाता है, और वे किसी मुसीबत में नहीं फंसती हैं तो उनको अच्छा लगता है काम करने में। क्योंकि मनरेगा एक ऐसा एक्ट है जिस पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शुरुआती दौर में मुझे भी लगा था कि पागल हो जाऊंगी ये मनरेगा सुन करके, जब भी सुनते थे तो लगता था कि पागल ही हो जाऊंगी, इस तरह से लगता था। अगर मुझे बीआरएलएफ इतना सपोर्ट नहीं की होती तो आज मेरे पास इतना नॉलेज नहीं होता। और मैं आज बताना चाहूँगी कि आज मैं पंचायती राज विभाग से जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर भी हूँ मनरेगा में। आज मैं अपने ब्लॉक के साथ साथ दूसरे ब्लॉक में भी जाती हूँ ट्रेनिंग देने, मनरेगा की ट्रेनिंग देने जाती हूँ। तो मेरे पंचायत की जो मेट है वे भी सोचती हैं कि हमारे साथ तो हमारी जो मैडम है वो मास्टर ट्रेनर भी है, अगर हम लोग किसी तरह से फंस गए तो मैडम हम लोग को बताएगी, दिखाएगी। और काफ़ी वो लोग पहले से ही, मैंने तो किसी मेट को चेंज ही नहीं किया, मेरा कार्यकाल हुआ 3 साल, लेकिन उनका एक्सपीरियंस तो 6-8 साल का है। तो मुझे लगा कि उनको चेंज करने से मेरे यहाँ काम में इफेक्ट होगा, और 5 साल का ही तो हम लोगों को मौका मिलता है, इसके बाद तो 5 साल के बाद तो चेंज हो जाना है। अगर दोबारा मौका मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद तो चेंज होना ये लोगों पर डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से महिलाओं में भी काफ़ी सशक्तिकरण आया है। और महिलाएं क्या करती है, अभी मैं हाल फिलहाल में एक मीटिंग रखी थी महिला समूह के साथ, मैं उनको देखती हूँ कि काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो उनका कहना क्या था कि मैडम मैं भी मनरेगा में लेबर का काम करूँगी, मुझे तो मेट में तो आता नहीं काम करना, मैं लेबर का काम करूँगी। मैं उनको देखने लगी, अरे ये मनरेगा का काम करेगी, लेबर का? बोलते नहीं नहीं हम करेंगे, ये चौका ना खोड़ना है, हम तो उतना कर ही लेंगे, गाँव के हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि देखिए अब अच्छा काम करने वाले लोग भी चाहते हैं कि मनरेगा में इन्वॉल्व हो, मनरेगा में काम करे। और पहले जैसे महिलाएं जाती थी मजदूरी करने बाहर, अब क्या हो गया है कि ये लोग गांव में ही, अपने गांव में ये काम जो होता है तो आसपास में ही होता है 5 किलोमीटर के दायरे में, और हम लोग चाहते हैं कि 2-3 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर ही उनको योजना दें, अपने गांव में अपने ही जगह में उनको काम में इन्वॉल्व करें। और इस तरह से हम लोग कर भी रहे हैं। तो अब क्या करती है कि महिलाएं सुबह जाती है, 1-2 चौका खोड़ती है, या फिर अधूरा हो जाता है तो शाम को फिर जाती है, वे शाम को जाती है और खुद जाती है, कोड़ती भी है, और अब इसमें पति भी उनका सपोर्ट करने लगे हैं। अब उन लोगों को लगता है कि जब हमारा गुजारा यहीं से हो जाना है तो हम बाहर क्यों जाएंगे और बाहर मार्केट में क्यों काम करने जाएंगे। तो इस तरह से होता है। और अभी मेरे यहाँ इस तरह से कहे तो मेरे यहाँ काफ़ी अच्छे से काम चल रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं।
मुझे लगता है कि अभी किसी को मुझे अपनी पहचान भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं झारखंड में लोग कहते हैं कि आपको अपना पहचान बताने का अब ज़रूरत ही नहीं है, आपके यहाँ काम भी ऐसा होता है, तो लोग आते हैं मेरे यहाँ। मैं धन्यवाद करूँगी BRLF को, अगर इतना सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और मेरे पंचायत इतना डेवलप नहीं हो पाता है। धन्यवाद पुनः सबको। थैंक यू अनिता पूर्ति जी, आप सही बोला। एक तो जमीन के बर्बादी हो, दिस वाज अ काइंड ऑफ people used to think like that only, but now the entire scenario has changed because of this Jivida Hasa, because of this BRLF intervention. So that is one good thing. काम के साथ दाम भी मिलता है, 2 years योजना कर रहा है, तो उसके साथ फायदा भी होता है, एसेट भी होता है, another very good kind of way. और उन लोगों की शेयर झुकता है मेरे पास आने के बाद. सो दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट हो, दोबा की चाहिदा बढ़ गया है और मेट की एम्पावरमेंट हुआ है. सो दीज आर वेरी गुड काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द फील्ड फ्रॉम अ मुखिया हरसेल्फ. सो नाउ विल गो टू अंजनी जी. अंजनी कुमार सिंह फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन. He will be talking about different things, but the focus will be on again women empowerment, A, and B on watershed based activities. So Anjani ji, now it's your turn. Thank you. Thank you so much, Sarkar Sahab. You know, in the beginning जो है सबसे पहले मैं BRLF को धन्यवाद देना चाहूँगा, not only for organizing this wonderful event, but also inviting us and providing this opportunity to हमारा जो एसोसिएशन रहा है, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के बोलूँगा. सो हमारा जो एसोसिएशन रहा है मनरेगा के साथ और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, उसके बारे में आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू BRLF, बिकॉज दिल्ली में ऐसे बहुत कम इवेंट होते हैं जहाँ पे इतने सारे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो. इवेंट तो बहुत होते हैं, बहुत सारे इवेंट में हम भी जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम इवेंट होता है जहाँ पे इस तरह से लार्ज स्केल पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो. गांव में जो कटिंग एज पे जो फंक्शनरी काम कर रहे हैं वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करें. तो उन सबको बुलाने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि भाई हम उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, इसके लिए भी मैं BRLF को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ. आई वॉज सुपर इम्प्रेस विद अनिता दीदी का जो फायरी स्पीच जो था, कि किस तरीके से उन दो चीज़ें जो उनके जो उन्होंने शेयर किया उसमें मुझे अच्छा लगा. एक तो कि सेम प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं है, और सेम लोग, सो आदमी में भी कोई बदलाव नहीं है, और उसके साथ भी आप कैसे अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं. तो जो एग्जीक्यूशन चैलेंज है उसको जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसी प्रोग्राम में उसी लोगों के साथ मिलकर में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा सीख है. और धन्यवाद अनीता दीदी, आपने जो इस चीज़ के बारे में बताया. नाउ कमिंग टू मनरेगा, बहुत दिन हुआ नहीं है. हम लोग, हमारी याद जो है बहुत छोटी होती है, बट 2 साल 3 साल पहले अगर आप कोविड का दिन याद करेंगे, तो कोविड के दौरान में जो है अगर इंडिया में हमें अगर किसी ने सेव कर पाया, तो 2 प्रोग्राम जिसकी जो है सबसे ज़्यादा याद आती है. एक है MG नरेगा और दूसरा है PDS. मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीन तो बाद में आया, लेकिन ये जो 2 प्रोग्राम थे वो सबसे बड़ा वैक्सीन था हमारे लोगों को अपने लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए, और वैसे बुरे समय में भी उनको कुछ ना कुछ जो है अपनी फूड इनसिक्योरिटी और कुछ ना कुछ हर हाथ को काम देने के लिए ये 2 प्रोग्राम जो हैं, मुझे लगता है कि दे completely sign out for the whole country to save from the COVID and all. So that I just wanted to remind people that how important these 2 programs are for the overall country's inclusive development. Now जब हम बात करते हैं, the title of this whole session was and 2 words which was again came out very clearly: inclusive and sustainable. Again, I don't think मनरेगा से ज़्यादा कोई इंक्लूसिव प्रोग्राम है. एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक कारण है.
देयर इज नो गवर्नमेंट प्रोग्राम विच एटलीस्ट आई हैव कम अक्रॉस जहाँ पे कि गाइडलाइन जो है ओपन एंडेड है, बट गाइडलाइंस बोलता है कि मिनिमम 30% वुमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन वुमेन पार्टिसिपेशन मनरेगा में जो है नेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट 56-58% है। एनआरएलएम की बात अलग है, बिकॉज एनआरएलएम जो है एक्सक्लूसिव वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है, तो वहाँ तो 100% महिलाएं हैं, बट वो एक अलग कारण से है। मनरेगा में जो उनका गाइडलाइन बोलता है कि मिनिमम 30% होना चाहिए, बट जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का वो जो है ऑलमोस्ट 56-58% है, एंड दैट इज कंप्लीटली डिमांड ड्रिवन एंड ऑल, एंड दैट शोज दैट हाउ इंक्लूसिव this program is. I haven't come across any government program, any centrally sponsored scheme जहाँ पे कि open ended guideline में महिलाओं का participation 50% से ज़्यादा है. So that's the reason I am saying it's one of the most inclusive program. दूसरा जो है वो sustainability की. Again, I haven't come across at this moment there is any government program जो कि इस तरह से long term टर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है। जैसे वो नेचुरल रिसोर्स पे है, लैंड लेवलिंग जो दीदी ने बताया कि लैंड लेवलिंग पे काम करते हैं, बंड स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, प्लांटेशन पे काम करते हैं। उसमें मैं दो चीज़ सरकार साहब ने एक अच्छा फ्रेज मुझे दिया, टुडेज वेज फॉर टुमारोज लाइवलीहुड, और मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ कि हाउ मनरेगा इज टुडे वेज इज क्रिएटिंग टुमारोज लाइवलीहुड। जब अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ जब वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड एक एनआरएलएम का कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम था एनआरईटीपी, और एनआरईटीपी में जब इनफैक्ट एनआरएलपी में जब फर्स्ट टाइम जो एफपीओ बन रहे थे, उसमें पहले जो दो एफपीओ, एक उड़ीसा में मैंने देखा, वहाँ पे कौन से एफपीओ थे, तो वहाँ पे मैंगो के अराउंड एफपीओ बन रहा था। और जब पता चला कि भाई ये मैंगो कहाँ से आया यहाँ पे उड़ीसा में, किस तरह से, तो पता चला कि 10 साल पहले वहाँ पे मनरेगा से मैंगो का प्लांटेशन हुआ था, और आज 10 साल बाद वहाँ पे लाइवलीहुड प्रोग्राम जो है एफपीओ का बनाने का काम कर रहा है उसी कम्युनिटी के साथ, उसी गांव में। द सिमिलर थिंग हैपन इन पूर्णिया इन बिहार। वहाँ पे लार्ज स्केल पे इसका ड्रमस्टिक का जो ड्रमस्टिक होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहजन का प्लांटेशन जो है उसका हुआ था पूर्णिया में, और वहाँ पे आज एफपीओ बन रहा है सहजन के अराउंड में, इस ड्रमस्टिक के अराउंड में, तो उसको कैसे जो है उसके पाउडर बनाए जाएं, उसके कैसे उसको जो है और एग्रीगेट लेवल पे मार्केटिंग किया जाए एंड ऑल। सो जो मनरेगा जो 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, और वो आज जो है वो किस तरह से कम्युनिटीज़ के महिलाओं के स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स हैं, उसके लाइवलीहुड को कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है, ये एक लाइव एग्जांपल है। सो दैट शोज दैट हाउ मच द इन्वेस्टमेंट दैट नरेगा डज इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटिंग सस्टेनेबिलिटी इन द होल इकोसिस्टम्स एंड ऑल। नाउ कमिंग टू द आवर एसोसिएशन विथ मनरेगा, हमारा मनरेगा के साथ जो मेन काम है वो ये रहा है, एंड अगेन चंद्र सर ने बताया कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, और जब मैं होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात करते हैं तो हमने बोला कि भाई वो तो करना ही चाहिए, बट अगर विद इन एमओआरडी इफ देयर आर 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम, तो मनरेगा एंड एनआरएलएम जो है ये एक सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है अदर देन रोड एंड हाउसिंग के बाद, जो कि लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। तो कैसे इन दोनों प्रोग्राम जो है मिल करके अधिक से अधिक काम करें, और ये रियलाइजेशन तब हुआ जब एनआरएलएम का पहला इवेल्युएशन हुआ था, आई थिंक 2016-17 में जो उसकी रिपोर्ट आई थी, और उसमें ये निकल के क्लियरली आया कि जो एसएचजी मेंबर्स हैं उनके 19% इंक्रीज इन इनकम हुआ है वैसे लोगों से, हाउस होल्ड से जो कि एसएचजी में जुड़े हुए नहीं हैं। सो द ओनली डिफरेंशिएटर वाज दोज हु आर पार्ट ऑफ द एसएचजी एंड दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द एसएचजी। एंड ये जो 19% जो इंक्रीज इन इनकम था, उसका एक लार्ज सेगमेंट जो था ये कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा और एनआरएलएम के तहत हो रहा था, और उससे ये निकल के आया कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों प्रोग्राम को साथ में काम करने की जरूरत है। सो दैट वाज द वन रियलाइजेशन। दूसरा जो है कि
और एक हमारे पुराने सेक्रेटरी साहब रूरल डेवलपमेंट में हुआ करते थे, और वो बोलते थे कि बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं वो जिनको इस प्रोग्राम को, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जहां अच्छा करना चाहिए वहां पे वो अच्छा नहीं करते हैं, और जहां अच्छा नहीं करना चाहिए वहां पे अच्छा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंड नो ऑफेंस टू एनी स्पेसिफिक स्टेट्स एंड ऑल, बट जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम की ज़्यादा ज़रूरत जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे इन प्रोग्राम का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए. बट अगर आप फंड यूटिलाइजेशन देखेंगे तो बहुत सारे सॉदर्न स्टेट जो हैं वो मनरेगा में ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं बनस्पत की दीज स्टेट्स एंड ऑल. तो गरीबी ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन मनरेगा का यूटिलाइजेशन जो है दूसरी जगह पे ज़्यादा हो रहा है. तो कैसे जो है हम और वहाँ पे हम ये भी देखें कि वहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो आप देखेंगे कि भाई केरला जैसे जगह में जो है 90% महिलाएं का पार्टिसिपेट कर रही है मनरेगा में, वेरएज यूपी में हम देखते हैं कि एक समय था कि मात्र करीब 30-35% उनका पार्टिसिपेशन हो रहा था. बिहार में भी वही था, बट अब जब जीविका के साथ उन्होंने मिलकर काम कर रहे हैं तो वो भी करीब 56-58% चले गए हैं. झारखंड में इफ आई एम स्टिल नॉट मिस्टेकन इट्स अराउंड 40-45% एंड ऑल. तो कैसे जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है हम मनरेगा में बढ़ाएं, और उसका जो है जो एक तरीका यही था कि भाई एनआरएलएम और मनरेगा जो है दोनों एक साथ मिलकर के कैसे काम करें. उसमें एक जो दीदी ने भी बात की कि भाई महिला मेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अधिक से अधिक महिला मेट अगर उसमें डिप्लॉयमेंट हो, और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पे यूपी में, झारखंड में, बिहार में जहाँ जहाँ महिला मेट्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है वहाँ पे जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. दूसरा चीज़ था कि भाई हम जो है और ये अगेन MORD एंड चंजीत सर को क्रेडिट जाता है कि मनरेगा के साथ मिलकर के जो एनआरएलएम के साथ जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं उसको हम कैसे जो है PIA के रूप में मनरेगा में हम उसको जो है एक्सेप्ट करें, और अधिक से अधिक क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है वो मनरेगा का बेनिफिट लें, मनरेगा को महिलाओं तक ले जाने में भी जो है काम करें. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, हमारे पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं. जो है BPRP GPDP जो है ये भी अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है, जिससे कि जो विलेज प्रोस्पेरिटी एंड रिजिलियंट प्लान जो है वो पहले बन के और फिर बाद में जो है वो GPDP में इंटीग्रेट होता है. तो उसको भी जो है मेरा ये रहेगा कि भाई उसमें कुछ चैलेंजेज हैं, बहुत सारे प्लान आती हैं जो कि एक्सक्यूशन नहीं हो पाता है. तो उसमें भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे मिल करके और उसमें कंट्रीब्यूट करें जिससे कि जो है वो प्लानिंग प्रोसेस जो है ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा. बस लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा कि भाई बहुत सारे काम जो मनरेगा में अच्छे हुए हैं, चाहे वो झारखंड के दीदी की बगीचा है या उड़ीसा का एक प्रोग्राम जहाँ पे कि न्यूट्रिशन गार्डन के ऊपर में मनरेगा में काफ़ी अच्छा काम हुआ था, चाहे अमृत सरोवर का काम था जो कि नेशनल लेवल से कंसेप्चुलाइज किया था. वो इन सारे चीज़ों को कैसे और अधिक से अधिक स्केल, खासकर न्यूट्रिशन जो है, मेरा ये मानना है कि न्यूट्रिशन पे जो है स्पेशल फोकस होना चाहिए, और मनरेगा को जो है कैसे हम न्यूट्रिशन के साथ भी कनेक्ट करें और ये कोशिश करें कि भाई न्यूट्रिशन गार्डन को प्रमोट करने के लिए, डाइवर्सिटी ऑफ फूड जो है उसको बढ़ाने के लिए हम जो है कैसे मनरेगा का यूज़ करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं. थैंक यू. Thank you, Anjani ji. You have taken up very good taken us through this women involvement in the entire program, and probably it is from here we can go to Charanjit Singh ji, because Charanjit Singh ji was one of the architects for the NRLM at the national level. So महिलाओं के जो योगदान है मनरेगा में वो we need to see it from two different angles. One is in implementation, how women are participating, SHG women are participating, and the second, probably more important, is the asset that is being created through Manrega, be it water related asset, be it land related asset, be it plantation related asset, how these assets can be further used
for layering livelihood initiatives, which is the major focus of the self-help groups or their clusters and federations. So keeping both these in mind, so backward linkage and forward linkage, probably Charanjit Singh ji would be speaking on this. थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से मेरे जो पहले के दो वक्ता हैं उन्होंने बड़ा अच्छा कहते फाउंडेशन डाल दिया है और इतना बेहतरीन उन्होंने बता दिया है, तो अब मेरे को ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे कि एनआरएलएम की ही आपने जैसे बात किया। एनआरएलएम एक थोड़ा सा मैं आपको स्केल बता देता हूँ इसका क्या है। एनआरएलएम जैसे आपको 10 करोड़ घरों को जो है एनआरएलएम के तहत जोड़ा गया है, जिसमें 90 लाख जो है स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं पूरे देश भर में। और एक घर में भी अगर आप 5 के लगभग जैसे जोड़ लो तो 50 करोड़ के लगभग जो है लोग इसका जुड़े हुए हैं। मेरे को नहीं लगता दुनिया में इससे बड़ा कोई प्रोग्राम कहीं भी है जो, तो ये तो इस प्रोग्राम का स्केल है। अब ये तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ, नो डाउट जो है। फिर इसमें क्या है कि ये तो महिलाओं को जोड़ा, समूह बनाएगा, ये तो एक फेज था जो कि शुरू में चला। मुझे लगता है कि 16-17 तक इसका मेन रहा फोकस। उसके बाद इनका बैंक लिंकेज पे बहुत फोकस आया। बैंक लिंकेज में क्योंकि इनको बैंक के साथ जोड़ा जाए, तो बैंक में भी आपको जान के खुशी होगी कि 10 लाख करोड़ के लगभग ये जो हमारे समूह हैं ये बैंकों से लोन ले चुके हैं। ना केवल लोन लेते हैं, उसको किसी अच्छे काम में लगाते हैं और ब्याज सहित उसको वापस करना, वो और भी बड़ा काम है। तो क्योंकि आप देखेंगे अगर इनका एनपीए भी 1.5% के लगभग है, ऐसा किसी भी सेक्टर में नहीं है। तो अब इन्होंने ना केवल पैसा लिया, उसको किसी कहते प्रोडक्टिव यूज में लगाया और बैंक को ऋण वापस किया। वो एक सेकंड स्टेज था जो कि मुझे लगता है कि 21-22-23 तक चला। अब जो थर्ड फेज चल रहा है वो लाइवलीहुड का है। अब हमने इनको वो भी दे दिया, संगठन बना दिया, बैंक लोन दे दिया, लेकिन अब हर किसी का रहता है कि मेरा एक ऐसा मतलब पैसा मेरे को मिले ताकि मैं आराम से अपना जीवन यापन कर सकूं। तो ये फेज के थ्रू हम जा रहे हैं। तो लाइवलीहुड जो है एक बहुत बड़ा काम है। अब एनआरएलएम के पास खुद का तो पैसा है नहीं इतना कि वो अपना आपके लिए फैक्ट्री लगवा दे या शेड बनवा दे या हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगवा दे। तो फिर उसमें आ जाता है कन्वर्जेंस की बात। कन्वर्जेंस कहाँ से आए? जैसे मैंने सुबह भी कहा कि एमजी नरेगा एक बहुत बड़ा फंडिंग सोर्स है। जैसे 86,000 करोड़ जो है कि बहुत बड़ी रकम है, तो उसको कैसे कहते कि प्रोडक्टिव ढंग से यूज किया जाए, तो वहां आ जाता है काम। तो हमने इसके ऊपर काफी प्रयत्न किए कि कैसे विभिन्न विभागों को इसके साथ जोड़ा जाए। तो एमजी नरेगा तो रहा ही रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई, जैसे मैं सुबह भी कह रहा था कि समस्या जो है ना इतनी आसान नहीं रहती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं रहती हैं उनको, और जो जमीन स्तर से कहते कि वॉइस आती है वही अपने को बेहतरीन सॉल्यूशन बताती है कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। एक मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। मेरे को वेस्ट बंगाल जहाँ पे हैं तो वहाँ मेरे को जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैंने बड़ा अच्छा देखा कि कैसे जो विभिन्न योजनाएं, विभिन्न संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं तो क्या रिजल्ट निकलते हैं। वहां उन्होंने एक गांव में क्या किया कि एक तालाब या डोबा जो आप कहते हैं कि तालाब खुदवाया। तालाब उन्होंने एमजी नरेगा से खुदवा लिया, और वो उन्होंने तालाब जो है जो हमारी एसएचजी की महिलाओं ने वो उन्होंने कहते कि कहा कि हम इसको संभालेंगे। संभालने का काम एसएचजी के पास चला गया। तीसरा फिर फिशरी डिपार्टमेंट पिक्चर में आ गया। कहते कि हम इसमें आपको जो पर्ल कल्टीवेशन, पर्ल होता है मोती जो बनते हैं ना, वो क्या कि बड़ा सिंपल सा काम है लेकिन टेक्निकल काम है। एक बार छोटा सा पत्थर डालते हैं वो उसके अंदर शेल में, उसके ऊपर वो सफेद मोती बन जाता है। वहां से हमारी महिलाओं को फिशरी डिपार्टमेंट ने सिखा दिया। अब 3 विभाग जब मिलकर देखिए काम कर रहे हैं, अब वो महिलाएं इतनी खुश हैं क्योंकि जब वो मोती उसमें से निकलते हैं और उसको बेचते हैं तो वो तो बहुत अच्छा पैसा वो उसमें से कमा रहे हैं। तो ऐसा जब हम, मेरे को लगता है कि मिलके जब हम काम करते हैं, वही मैं सुबह भी कह रहा था, तभी हम किसी समस्या का कहते कि हल निकाल सकते हैं। तो मिलके मेरे को लगता है कि काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो भी कहते कि ग्राउंड से डिमांड आती है, जैसे अंजनी जी ने भी कहा कि वीपीआरपी और जीपीडीपी। वीपीआरपी क्या कि गांव की डिमांड निकालता है बेसिकली कि क्या उनको चाहिए, किसी को पॉन्ड बनाना है या हॉर्टिकल्चर के लिए चाहिए या रोड, जो भी चाहिए वो वीपीआरपी के थ्रू आता है, जो कि ग्राम पंचायत कहते कि प्लान में जुड़ जाता है। और लेकिन क्या कि सिर्फ जुड़ने से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि मतलब हो सकता है हमारे आइडिया तो बहुत अच्छे अच्छे हों, लेकिन जीपीडीपी में जुड़ने के बाद जो जो काम निकल के आए हैं वो काम होने भी तो चाहिए मौके पे।
नहीं तो लोग कहेंगे ये तो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, हर साल कराते हैं, अगले साल से मैं करूंगा ही नहीं। अब तो मेरा कहते कि वक्त कहते कि इसमें खराब करते हो। तो जीपीडीपी से जो काम निकलते हैं, तो मेरा ये मत है कि वो कामों को अपने को सभी विभागों को लेना चाहिए। अगर कहते कि वो काम एमजी नरेगा के थ्रू हो सकता है तो एमजी नरेगा के थ्रू होना चाहिए। अगर उसमें कहते कि स्कूल शिक्षा विभाग का कोई रोल है तो स्कूल शिक्षा विभाग को करना चाहिए। ऐसे ही दूसरे पीडब्ल्यूडी का कोई रोल है तो उसमें मेरे को लगता है कि ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने को काम बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। और लेकिन ये बहुत बड़ा देश है, इतनी 2.5 लाख पंचायतें हैं, 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। आप कहोगे ये तो मतलब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे को लगता है आजकल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है और अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और पैसा बहुत ज़्यादा है। जो मेरा एमफिल का थीसिस था वो भी मैंने इसी पे किया था, रूरल डेवलपमेंट पे। तो मैंने ये 2014 में किया था एमफिल, तो मैंने पूरा डाटा कलेक्ट करवाया था। तो अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट में लाखों करोड़ों में हर साल पैसा खर्च होता है। तो अगर हम ये पैसे का सही ढंग से यूटिलाइज कर लें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल कहते हैं कि अदा कर सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि काम करना चाहिए। और तीसरा, बल्कि मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि हमें क्या है कि अब क्या है कि जैसे आप मॉडर्न टाइम से गुजर रहे हो, आपसे लगातार सवाल कहते कि पूछे जाएंगे। आप डेमोक्रेसी में पीछे नहीं हट सकते। आपसे पूछा जाएगा कि आपने पैसा खर्च किया, बताओ क्या किया आपने, आउटकम बताओ हमें। आपने कितने लोगों को कहते कि गरीबी से बाहर निकाल दिया, कितने गांव ऐसे बना दिए समृद्ध गांव जैसे हो कि वहां कोई एमजी नरेगा की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कि सुबह कहा, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल पूछा जाएगा, नहीं तो उससे अगले साल पूछा जाएगा। यू कांट रन अवे फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, वी शुड बी रेडी टू फेस दिस क्वेश्चंस। तो हमें बताने को तैयार होना चाहिए, सर ये मैंने गांव लिया है, 4 साल के अंदर मैं इस गांव को ऐसा बना दूंगा कि जरूरत ही नहीं है और ये गांव इतना समृद्ध हो जाएगा। और देश बदल भी रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देश नहीं बदल रहा। मुझे एक गांव जाने का मौका मिला, जब मैंने देखा कि जब मैं शुरू में नौकरी में आया था तब गांव जाते थे, लोग पूछते थे सर हमारे रोड नहीं है, रोड बनवा दो, या बिजली नहीं है, ये करवा दो। अब मैं एक गांव गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गांव वालों ने पता है मेरे को क्या डिमांड बताई, सर हमारे टावर नहीं है, ये हमारे कहते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आती, मोबाइल पे वो सही नहीं हमें दिखता। अब तो डिमांड ये है कि मेरे को इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने यही बार बार रख रहा हूं कि आप सुनो जमीन से क्या आवाज आ रही है। अगर उसको आप नहीं सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड और देन यू शुड बी रेडी टू फेस द रेपरकशंस आल्सो। इस फूड फॉर थॉट के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगा। Thank you very much. A lot of food for thought. Just one thing for the discussions. Probably we are talking about this integration of VPRP in GPDP. But usually if you look at e-Gram Swaraj portal, you will see that all these VPRPs are mostly tags. The VPRP tag is given and most of these activities are not funded by the panchayats. So how this VPRP can be included in the funded part, that is section 4 of GPDP, so that the panchayats can work on that, and how Manrega and VPRP convergence is possible. So probably discussions will be discussing on that as well. Okay, we now go to Father Regimen. Father has worked very intensively in the field and with Manrega. So his experiences will be now listening to. सबको नमस्ते। सबसे पहले मैं बीआरएलएफ को धन्यवाद देता हूँ, ऐसे एक मौका मुझे दे दिया है। एक्चुअली आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट। जब हम लोग बड़ा ऑडियंस के साथ बात करते समय हिंदी में थोड़ा सा डर लगता है, फिर भी मैं जब सुना तो सभी लोग हिंदी यूज़ कर रहे तो मैं सोचा कि मैं जो बना के लाया वो तो रहने दो, लेकिन फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ मैं इंग्लिश के साथ फिर बाद में मैं हिंदी में स्विच ऑन करूँगा। The concept of sustainable livelihood is an increasingly important word in rural development and poverty reduction.
Rural livelihood security is one of the itemized goals in countries that are developing. Achieving this goal means ensuring food security, increasing farm household income, which will translate into the improvement of the both livelihood and household security and access to health service and education of the rural children. हम हमेशा लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें कुछ बातें जरूर आना चाहिए, तभी तो हम सस्टेनेबिलिटी बोल सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी, इतना सब होने से हम एक जगह या सोसाइटी सस्टेनेबल बोल सकते हैं। और हमारा एक एक्सपीरियंस है, हम लोग पहले भी एक प्रोजेक्ट था हमारा छत्तीसगढ़ में और अन्य देशों में होंगे, हम लोग CFT प्रोजेक्ट कर गए, तो क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम, और तो उसमें भी हम लोग जितना असेट मनरेगा द्वारा भी क्रिएट कर रहे थे वो भी उस समय भी हम क्रिएट किए हैं। और उससे पहले भी हम लोग BSM बस्तर से मंडल हमारा संस्था पिछले 48 ईयर्स में अभी बस्तर में काम कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग एजेंसी द्वारा और हमारे NABARD द्वारा हम लोग बहुत सारे काम इस प्रकार का किया है। लेकिन NABARD में ठीक है जरूर लाइवलीहुड का लेयरिंग हुआ था, लेकिन जब CFT प्रोग्राम हुआ था उसमें केवल असेट क्रिएट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब हम लोग BRLF के साथ जब मनरेगा काम शुरू किया है, उसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी और एग्रीकल्चर लेयरिंग शुरू किया है। और किस प्रकार हम लोग ये लेयरिंग शुरू किया है, उसमें हमारा सभी CSOs का रोल क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं केवल बस्तर से मंडल की नहीं बल्कि हमारा छत्तीसगढ़ का जितना हमारा 13 पार्टनर से BRLF में जुड़े हैं, उन सबके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ। और हम लोग पहले जब हमको ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है तो हम लोग गांव से हमारा लगन था पहले से, तो हम लोग गांव में गए, तो हम लोग उनको शुरू से लेकर हम लोग एक एक कम्युनिटी से मिला, एक एक पंचायत का नहीं, एक एक पारा से मिला और उनको अवेयरनेस किया है, मीटिंग किया है। उन लोग शुरू में उतना उन लोग आने के लिए तैयार नहीं था, ये क्या है कैसे है, लेकिन फिर हमारा BSM बोलने से लोगों को जानते, फिर भी लोग चलो तैयार हुआ है और हम लोग उनको बिठाए, बात किए, आपको क्या फ़ायदा होगा। और उन लोग जैसे मैडम ने बताया कि मतलब शुरू में लोग ये बोले कि हमारे इधर भी मनरेगा द्वारा काम हुआ है, अभी भी चल रहे, क्या बड़ी बात आप करेंगे, इस प्रकार का बात हुआ था। तो हम लोग को समझाया, इसका हम दूसरे तरीके से हम लोग करना चाहते हैं, आप लोग सहयोग कर, हम लोग पूरा उनको समझाने के लिए कोशिश किया है। उन लोग उसके बाद हम लोग लगे ये प्लान हम लोग नहीं बना रहे। उन लोग शुरू में ये बोले कि आप लोग प्लान बनाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, लेकिन हम लोग बोले नहीं, ये प्लान हम लोग नहीं बनाएंगे, आपके साथ बैठकर आप लोग प्लान बनाएंगे। तो हम लोग उनके साथ बैठकर हर एक एरिया, तो हम लोग अवेयरनेस के बाद हम लोग GS बेस पर हम लोग PRI टूल में हम लोग पूरा प्लानिंग किया है। तो लोगों के साथ चर्चा करते हुए उन लोग खुद बोले, अभी उन लोग खुद बोलना चालू किया, अपलैंड क्या है, लोलैंड क्या है, मिडिल लैंड क्या है। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है रिजिड वैली सिस्टम है। तो उन लोग खुद बोलने लगे और हर एक एरिया का फर्क क्या है उन लोग भी बोलना चालू किए और उनके साथ बैठकर उनके आधार पर हम लोग जो उनको प्लान दिया है, जरूर प्लान में हम लोग सहयोग दिया है, इस प्रकार का हम लोग प्लान बनाए। एक जैसे आज हमारा BRLF का जो शॉर्ट फिल्म दिखा रहा था, उसमें हमारा जनपद CO बोल रहे कि मतलब लोग बोलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मैप बनाते हुए लोग बोलना चाहिए, विशेषकर दीदी लोग, विशेषकर वहाँ का दीदी लोग बोलना चाहिए इसमें कैसे क्या रहेगा करके। तो इस प्रकार का हम लोग शुरू किया है। और उसके बाद जब काम के लिए हम चालू किए, हम फार्म पोर्ट बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए हम चालू किए, तो बोले कि लोग तैयार नहीं था। तो बोले कि हमारा इतना जगह हमको नुकसान है, हमारा 5 डिसमिल जगह नुकसान हो रहा है जो हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम लोग पूछे कि आपको कितना जमीन है, 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, उसमें से हम इतना जगह, कम जगह, अब पूछे कितना फसल मिल रहे, एक ही फसल मिल रहे। तो हम लोग समझाए कि जब आपका थोड़ा सा जगह देने से, तालाब खोदने से हम लोग ना आपको ये पूरा एरिया सैचुरेट करेंगे और आपको 2 फसल मिलेगा। इस पर हमको समझाने चालू किया
फिर भी थोड़ा सा लोग पीछे हो रहे थे। तो हम वहाँ पे कुछ लोग थे, थोड़ा शिक्षित लोग भी थे, उन लोग कर रहे थे पहले से जो मनरेगा के द्वारा काम मिला वाला है, तो उनको हम लोग पकड़े, उनको कुछ लोगों के साथ हम लोग चालू किए। जब इनका इनकम देखते हुए बाकी लोग भी धीरे धीरे आने लगे। और इसमें हम लोग हम बोले कि हम लोग मनरेगा काम के बारे में बोलने से अब शुरू में हम तालाब खोदना है, उसके लिए लोग भी तैयार होना है। लोग तैयार होने बोलने से हम लोग उसके लिए रोजगार दिवस मनाए और उसका रैली निकाले और दीवार में लिखना चालू किए और कम्युनिटी तरफ से अवेयरनेस चालू किया है। और उससे भी ज़्यादा हम लोग 1-to-1 अवेयरनेस चालू किया है। हर एक घर जाके हम लोग बोले कि आपका क्या फ़ायदा है, आपका घर आपका काम में मिल रहा है, आपका घर का काम, आपका जमीन का जो काम है वो खुद आपको कर रहा है और उसके लिए आपको पैसा भी मिल रहा है। और इस प्रकार का हम लोग जब उनके अवेयरनेस किया है तब हम लोग आने के लिए तैयार हो गए। और जब मनरेगा के द्वारा इतना सारा काम मिलने चालू किया और शुरू में एक एक तालाब के लिए हम लोग प्लान किए हैं। और हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वी कैन से एक सबसे बड़ा हमारा एक चर्या था पैच वाइज फार्म पॉन्ड। क्यों ना पहले एक तालाब खोदे, वहाँ पे आजू बाजू में उनका खुद के लिए थोड़ा सा खुद के लिए पानी मिल रहा है, उसमें हम लोग खेती कर रहे हैं। और जब हम लोग पैच वाइज तालाब खोदना चालू किया है और इस प्रकार से डीपीआर बनाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि अभी तक हम लोग इंडिविजुअल उन्नति के बारे में हम सोच रहे थे। जब एक एक तालाब खोदे, जब 5वें तालाब खोदे और उसमें ये फायदा हो कि पूरा एरिया सैचुरेट होने चालू किया है। तभी जो लोग एक फसल ले रहे थे वो लोग 2 फसल लेना चालू किया। कोई साल भर में मतलब मेज हो गया और फिर वेजिटेबल कल्टीवेशन। और मेरा ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हम लोग और भी कई प्रोजेक्ट में चल रहे थे। जब सर हमारा कोविड के समय पर बता रहे थे तो हमारा ब्लॉक है बकाउंट ब्लॉक, वहाँ पे हम पहले थोड़ा सा एरिया में कुछ एरिया में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू किए थे। जब कोरोना के समय पर मैं इसे दीदी लोग रोड में जबलपुर शहर में आके रोड में बेच रहे थे। मैं पूछा आप कहाँ से? हम लोग बकाउंट ब्लॉक से। कैसे इधर आया था, कैसे ये सब अभी भी आप लोग कर रहे? तो बोला हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो हमको BSM इस प्रकार का अगुवाई दी। उन लोग मुझे नहीं मालूम था उस समय। मतलब हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ फायदा होना चालू किया, कुछ ना कुछ नहीं बहुत सारा फायदा उनको मिलना चालू किया है। इसमें हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि जब हमारे इंटरवेंशन द्वारा बहुत सारे लोग, थोड़ा इधर उधर एक परिवार नहीं, पूरा गांव वाले को फायदा मिलना चालू किया और मनरेगा का काम भी बढ़ गया। पहले मनरेगा का काम लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बोले कि हम लोग अवेयरनेस किया है। मतलब विशेषकर इस पॉइंट में आपको काम भी, आपका जमीन में आप काम कर रहे हैं तब आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको फायदा भी हो रहा है। तभी धीरे धीरे उन लोग जो लोग तालाब खोदे वहाँ पे कम से कम यदि 10 महीना पानी मिलने वाला भी है और कोई 8 महीना मिलने वाला भी है, तो उसी के साथ कोई 12 महीना भी पानी है। वहाँ पे हम लोग मछली पालन चालू किए, बतख पालन चालू किए और इसके अलावा तालाब के तालाब के एरिया में भी किया। और उसके अलावा पानी भी 2 फसल और कोई 3 फसल भी। आप लोग सुने एक आज के वीडियो में भी बकाउंट का एक जन बोल रहे हम लोग अभी 3 फसल ले रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? हमारे लिए इतना गर्व की बात है। मतलब जब ऐसे जगह में जाते हैं, लोगों का जो पुराना स्थिति और अभी का स्थिति देखने से इतना बड़ा फर्क मिलने से हमारे लिए ये फायदा है। तो जब भी हमारा CRP कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के साथ बात करते समय मैं उनको यही बोल देता हूँ, देखो आप इतने सोचो आपका तंगा मिल रहा है, 9,000 मिल रहा है, लेकिन तंगा भूल जाओ, बल्कि उससे ज़्यादा आपका एरिया, आपका विलेज जहाँ पे आप रह रहे वहीं का एरिया पूरा डेवलपमेंट हो रहे। बहुत सारे लोग अभी घर बना रहे, गाड़ी खरीद रहे और बच्चों को एजुकेशन के लिए वहाँ से दूर जगह में हॉस्टल में डाल रहे, अंग्रेजी मीडियम भेजना चालू करेंगे उन लोग बोल रहे। मतलब इस प्रकार का बहुत बड़ा उन्नति हमारे गांव में है। ये सब हमारा मनरेगा के द्वारा है। तो मैं बोल रहा हूँ, यदि ये भी बोलना चाहता हूँ, पहले मनरेगा काम हो रहा था, लेकिन जब
हमारा एनजीओ उसमें इन्वॉल्व हो गया। बीआरएलएफ के साथ हमारे जितना पार्टनर लोग काम कर रहे हैं वो इस पूरा सारे ब्लॉक में फर्क है। बाकी ब्लॉक जहाँ पे बीआरएलएफ का काम नहीं चल रहा है और जहाँ पे चल रहा है वो दोनों एरिया में बहुत सारा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और जनपद एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पंचायत लेवल पे हमको कहीं भी जा सकते हैं, बोल सकते हैं, उन लोग भी तैयार है हमारे साथ काम करने के लिए। पहले हमारा हमेशा एनजीओ के बारे में सोचा था इन लोग क्या करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो मैं विशेषकर इस परियोजना के लिए मैं हमारा पूरा बीआरएफ टीम को पुराना हमारा जब हमारा 2018 से लेकर चालू किया, मैं याद करता हूँ अम्बस्ते सर और अभी का सीईओ और सर और पूरा टीम, और उसके साथ साथ एक्सिस बैंक फाउंडेशन और एक फादरली जगह पे खड़े होकर कर रहे हैं, और हमारा एसपीओ में प्रधान और हमारे सभी पार्टनर लोग, ये सबका एक साथ का आना और कोऑपरेशन इसमें बहुत बड़ा हमारा फायदा किया है। मैं मैं हमारा जो जितना मैं उसमें से बहुत लोगों का फायदा हुआ है, उससे 10 लोगों का आंकड़ा में दिखाना चाहता हूँ। कोई डबल इनकम हो रहा है, कोई 4 गुना, कोई 5 गुना इनकम उनको मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आंकड़ा उसमें 10 लोगों का मैं दिया हूँ। उसके सभी लोग 4 गुना से ज्यादा जो उनका पहले 3 साल पहले उनको जब भी 40,000 मिल रहा है, अब उनको 3 लाख हो गया, 3.5 लाख हो गया, इस प्रकार का फर्क आया है। तो thank you father, thank you very much. But I think we will be giving a copy of this in the report, so that will be good. Father has talked about the partnership. Very importantly said, ये प्लान हम लोग नहीं बनाएंगे, एक साथ बैठकर आप भी प्लान बनाएंगे. So this is the kind of approach that the CSOs have taken in extending their services to the communities. So that's very good. And हमेशा कुछ ना कुछ बनाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ फायदा चालू किया है. So these are the two very important things. We'll now go to Mr. Rajendra Sahare from Maharashtra. He will briefly speak about the experience in Maharashtra. महाराष्ट्र में जो भी हुआ उसके. सभी को प्रणाम, नमस्ते. महाराष्ट्र में जो काम चालू किया है, जो शुरू से मनरेगा में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बहुत कम काम हो रहा था. 2018-19 तक खाली 1800 करोड़ रुपए खर्चा था हमारा, और आज के डेट में 5000 करोड़ पे हम लोग पहुंच चुके हैं. तो इसका यह है कि डीजी मनरेगा हमारे मिस्टर नंदू कुमार जो है, जब से वहाँ पे आए, उन्होंने ये पूरा जो अपना मनरेगा एक्ट है उसको बड़ा बारकाई से देखा, और उसमें जो ये मेन चीज़ है, अभी हम सभी हमारे वक्ता बात कर रहे थे कि असेट बनाने का कार्यक्रम. तो ये असेट बनाने का कार्यक्रम जो है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था पहले मनरेगा में. खाली मजूरी देना, लेबर बजट बनाना और लेबर बजट के माध्यम से खाली मजूरी उपस्थित करना है. और यही शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी व्यू था लास्ट ईयर तक. जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो ये तो लोगों को खाली मजूरी प्रोवाइड करने की योजना है, इसमें से कोई लाइवलीहुड नहीं बन सकता, यही बात हो रही थी. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग ने MPI पब्लिश किया, 2 बार अभी लास्ट ईयर भी पब्लिश हुआ है, तो उसमें बहुआयामी गरीबी निर्देशांक पब्लिश हुआ है. उसके हिसाब से कौन सा स्टेट में कितना गरीबी है ये देखा जा सकता है. तो अभी हमारे एक मित्र ने बोला कि यहाँ पे जो फंड्स की जो बात है, जो हर स्टेट में अलग अलग हो रहा है. साउदर्न स्टेट्स ज़्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, और इधर यूपी और बिहार में जहाँ पर गरीबी निर्देशांक के हिसाब से ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे पैसा कम जा रहा है. तो एक्चुअली ये डिस्कशन में जब आया, हमने यहाँ पे भी बात की कि ये हिसाब से फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो बात चली तो बता रहे कि ये तो डिमांड ड्रिवन स्कीम है. तो डिमांड जब तक होता नहीं, डिमांड आती नहीं है नीचे से, तब तक के फंड्स कैसे जाएगा. लेकिन डिमांड आएगी कब? जब उसको पता चलेगा कि इसमें से क्या क्या हो सकता है. तो इसलिए जो अभी हमारे कुछ लोगों ने बताया कि अवेयरनेस
तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट हो गया है जिस स्टेट्स में, वहाँ से पूरा लेबर बजट मतलब बहुत ज़्यादा जा रहा है। जैसा तमिलनाडु, केरला, जैसा गरीबी वहाँ पे 0.6% है केरला में, लेकिन वहाँ पे भी 6,000 करोड़ बजट जा रहा है। और गरीबी मेरे ख्याल से है बिहार में, वहाँ पे बजट कम जा रहा है। तो ये भी थोड़ा देखने लायक है चीज़ें। हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बारे में। तो धीरे धीरे ये चीज़ निकल के आ रही है। जैसा मनरेगा, ये लोगों को खाली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का प्रोग्राम नहीं है, ये लाइवलीहुड जो है वो चेंज करने का प्रोग्राम है, प्रॉस्पेरिटी लाने का प्रोग्राम है। ये हम बता रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, क्योंकि 80 करोड़ जनता को तो ये राशन तो फ्री में मिल रहा है, तो इसलिए खाना खाने का तो उद्देश्य है ही नहीं, तो उसके ऊपर उठना चाहिए। तो ये इसके लिए पूरा जीवन मान जो एमपीआई में बताया गया है, उसके जैसा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बोला गया है कि हेल्थ, एजुकेशन और जीवन स्तर, इसको एक साथ में जोड़ के फिर उस जीवन स्तर को कैसा ऊंचा कर सकते हैं, उसके बाद में वो एमपीआई में धीरे धीरे निर्मूलन उसका हो सकता है या कम हो सकता है। तो उसके बारे में ये चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में वगैरह ये वो लेनी चाहिए, ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। दूसरा, अभी यहाँ पे एक बात इसी सेशन में हो रही थी कि कुछ प्रोटोटाइप डेवलप हो सकता क्या, तो इसी के ऊपर बात नहीं हुई है। तो हमने महाराष्ट्र में क्या किया है कि जैसा वेरिएशन है पूरे स्टेट में, बहुत ज़्यादा बारिश कुछ जगह पे हो रही है, कुछ जगह पे बहुत कम बारिश हो रही है, कुछ मिडल बारिश का एरिया है, तो वहाँ पे एनआरएम वर्क जो है नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो हिसाब से वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं उसके मॉडल्स बनाए हैं। तो एक मॉडल है खोमारपाड़ा, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमगढ़ तालुका में स्थित है। तो एक 124 फैमिलीज का गांव है। तो ये गांव पूरा विस्थापित होता था, जैसा एक अपना राइस ले लिया, उसके बाद में पूरा के पूरा गांव 100% विस्थापित हो जाता था। बाजू में सूरत, मुंबई वगैरह जहाँ के लिए, और यहाँ ज़्यादातर लोग जो समुद्र से रेती निकालने का काम के लिए जाते थे। लेकिन हमने वहाँ पे 2021 से काम चालू किया और लोगों को बताना चालू कर दिया कि यहाँ पे राइस के अलावा भी आप कुछ कुछ ले सकते हैं। फिर फार्म पॉन्ड की भी आइडिया आई। वो लोग फार्म पॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोकन बेल्ट में जो लैंड होल्डिंग होता है बहुत कम होता है, गुंटेवारी जिसको बोलेंगे, एकर्स में बहुत ज़्यादा लैंड वहाँ पे रहती नहीं है। तो ये लैंड होल्डिंग कम होने की वजह से, जैसा हमारे कुछ वक्ता ने बताया कि वो लोग तैयार नहीं होते कि हमारा खेत खराब हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम राइस नहीं उगा पाएंगे। तो हमने लोगों को एक दो लोगों को तो खुद फंड करके बोला कि हम आपका 1 साल के लिए हमको थोड़ा बताइए कि ये यहाँ पे आप फार्म फंड बना दो, अगर ये नहीं काम करता है तो फिर उसके बाद में हम इसको बुझाने का भी आपको पैसा दे देंगे। तो एक लोग तैयार हो गया वहाँ पे, उसने बनाना चालू कर दिया। पूरा गांव वहाँ पे आ गया, बोल रहा है तू क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बन रहा है, पूरा ये फार्म पॉन्ड में तेरी ज़मीन चले जा रही है। तो वो बोले कि साहब लोगों ने मुझे बोला है कि ये पैसा दे देंगे। तो उन्होंने उसने पहला पॉन्ड बनाया। फिर उसने देखा कि वहाँ पे तो पूरा वो लोग समुद्र में ज़्यादा काम करते, तो मछली वाला उनको पता था। तो उन्होंने फिर देखा कि इतना पानी यहाँ पे भर गया है, क्योंकि 2,500-3 हज़ार mm पानी वहाँ पे गिरता है पूरा कोकन बेल्ट में, तो वो तो ऐसे ही भर जाता है फार्म पॉन्ड। तो फार्म पॉन्ड में उसने जैसे ही मछली डाला, उसी साल उसने 4-4 लाख रुपए का मछली बेचा। फिर बाकी लोगों ने एकदम से वहाँ पे काम करना चालू कर दिया। तो ये जो स्पार्क है वो देने की जरूरत है हर गांव में। तो कुछ जो ऐसे प्रोटोटाइप वहाँ पे बन गए। देखो अभी वहाँ पे हर फैमिली लखपति हो गया है। हमने वहाँ पे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन लॉन्च किया है पूरे महाराष्ट्र में, और उसमें हर फैमिली लखपति ये कम से कम होना चाहिए। इसके तरफ हमने टारगेट रखा है। हर गांव में हम उसके लिए काम करना अभी शुरू कर रहे हैं। तो जैसा चरणजीत सिंह सर ने बोला कि इसमें पॉलिटिकल भी इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी लास्ट वीक में ही जैसा हम एक एमएलए को
एक एक ब्लॉक का ये दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं, और उसका शुरुआत भी हो गई है जत तालुका सांगली जिला में। तो उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, मिनिस्टर भी वहाँ पे आए थे। तो वो उन्होंने पूरा ब्लॉक डेवलपमेंट का कार्य थ्रू मनरेगा लिया है। तो मनरेगा में बहुत ताकत है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे पूरे जो परमानेंट प्रोडक्टिव असेट बनाने के लिए पूरा पैसा अवेलेबल है। तो ये पैसा अगर प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए तो यहाँ पे पूरा फैमिली ये इसमें से निकल जा सकते हैं। तो ये हमने जो खोमारपाड़ा गांव लिया है, तो उसका स्लोगन ही हमने बनाया था कि मनरेगाच्या माध्यमातून मनरेगा मुक्तीकडे। तो मनरेगा से कैसा हम यहाँ से निकल जाए। तो अभी आप मनरेगा में जाएंगे, अभी बहुत लोग भी वहाँ पे विजिट करके आए, हमारे मिनिस्टर भी आए, राज्यपाल भी वहाँ पे विजिट किए। तो लोग अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, हम मनरेगा में अभी अगले साल से कोई काम नहीं लेंगे। तो उनका खुद का ही, जैसा उन्होंने फूल सेती है ना, मोगरा सेती किया है। मोगरा सेती में से वो हर गुंटा में से 1000 रुपये 1000 रुपीज पर केजी बेच के तो पर डे 1000 रुपये कमाते हैं। तो ऐसा मोगरा सेती है, फिर वहाँ पे कैश्यूनट है, फिर आंबा है, ये बहुत सारे ऐसे फलजाल। और ये जैसा पानी वहाँ पे उपलब्ध करना, एनआरएम जो बोला गया है, तो उसमें हमने पहले ही ये अभी सब जगह पे मतलब प्रॉपरली ब्लू ग्रीन एंड मनी ये हमने लोगों को अभी बताया। तो जब तक तुम ब्लू की व्यवस्था नहीं करेंगे, पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक ग्रीनरी नहीं आ सकती। तो 2 बार में जो आपको आना है, 2 बार खेती करना है, 3 बार करना है साल में, तो जैसा 3 पीक लेना है, तो उसके लिए अपने को पानी की जरूरत रहेगी। तो ब्लू की पहली व्यवस्था करना है जो एनआरएम में से हो सकती है, एनआरएम वर्क से, जो जैसा नाला बंडिंग, नाला खुलीकरण, नाला सरलीकरण, इसमें जो भी है, और कुआं भी हम लोगों को दे रहे हैं। तो हर फैमिली को कुछ ना कुछ उसका असेट, ऐसा परमानेंट असेट मिल जाए कि उसमें से वो उसका लाइवलीहुड का जो काम है वो अच्छे से चल जाए, और उसके पास में और भी जो जीवन स्तर ऊंचा करने के जो असेट्स है वो भी आ जाए। तो जैसा हमने यहाँ पे, हमारे पास में पूरा उसका केस स्टडी भी है, हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जैसा वहाँ पे खाली 6 लोगों के पास में 2 व्हीलर था, अभी 58 लोगों के पास में है। 2 लोगों के पास में 4 व्हीलर था, अभी 16 लोगों के पास में है। तो ये 124 फैमिलीज में हुआ रिवॉल्यूशन है। और अभी वहाँ पे एक भी आदमी गांव से विस्थापित नहीं होता है, वो पूरे साल गांव में रहता है। थैंक यू राणे जी, वी नीड टू क्लोज नाउ। नहीं, मैं सर 1-2 मिनट लूंगा। खाली प्रोटोटाइप के बारे में किसी ने बात नहीं किया। तो ये हमने जो 2-3 टाइप के प्रोटोटाइप बनाए हैं, एक तो प्रोटोटाइप अभी बताया है ना। तो ये जो है कि यहाँ पे 3 से 4000 mm बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे कर रहे हैं वो बताया। दूसरा है सर, देवगांव करके गांव है हमारे औरंगाबाद, जो पूरा छत्रपति संभाजी नगर पैठन तालुका में, वहाँ पे 450 mm बारिश होती है। तो वहाँ पे पूरा सूख जाता है, धूप काले में कुछ नहीं बचता है। तो वहाँ पे पहले मौसम्बी लोग लेते थे, अभी वो मौसम्बी तो पूरा सब लोगों ने जैसा मौसम्बी लगाना चालू कर दिया, तो मौसम्बी धूप काले में खत्म हो गया, करप गया, खत्म हो गया। तो उसको निकाल के लोगों ने अभी तूती लागवड़ चालू कर दिया। तो रेशीम वाला जो काम है, वहाँ पे हर एकड़ में 4 लाख रुपए लोग रेशीम के माध्यम से कमा रहे हैं। ये देवगांव का वाला मॉडल हो गया। तीसरा सर, वासाड़ मत्ता वाला एक मॉडल है। वो मॉडल हमने चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में नागबीड़ तालुका में वासाड़ मत्ता नाम का गांव है, वहां पे CFR में 40,000 पेड़ लगाए। तो वो पूरा के पूरा गांव जो विस्थापित होता था उसको 3 साल के लिए पूरा वहीं पे रोजगार मिल गया। और वो लोग अभी वहां तक सोच पा रहे हैं कि इसमें से जो 3 साल के बाद में जो प्रोडक्शन आएगा तो उसमें पूरा गांव जो है तो सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, वहां तक लेके जाएंगे। जो आदमी का एज 70 साल के ऊपर हो गया है उसके खाते में पैसा डालेंगे और वो उसमें से उसका आगे का भविष्य चलाएगा। तो ऐसा एक मोथा करके गांव है चिकलदरा तालुका में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे पूरा गाय गोठा और कैटल सेट्स वगैरह दे के तो ये पूरा डेयरी डेवलपमेंट का काम जो है वो वहाँ पे बड़े पैमाने पे हुआ है। तो ये 4 मॉडल जो प्रोटोटाइप आप बोल रहे थे, तो वो महाराष्ट्र में हमने डेवलप किया। जो एरिया ऐसा है जहाँ पे ये लोग करना चाहते हैं वो अपना अपना मॉडल के हिसाब से काम कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, we don't have much of time. Another 15 minutes we can take because we started a little late, 45 minutes late. So we have 2 discussions.
I would request first of all Ashwini, Ashwini Kulkarni ji ke. So she will start the discussion and then Aruna Pandey will join. Yeah. Yeah, thanks. Thank you. अभी तक जो बातें हुई उसमें से मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं और उस पर ज़्यादा चर्चा हो सकती है ऐसा लगता है, तो उसी को लेकर के मैं बात करूंगी। मैं ये नहीं कोशिश करूंगी कि किसने क्या बोला है, वो रिपीट करने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। एक बात जो हुई है कि किसी स्टेट में ज़्यादा MGNREGA को इस्तेमाल होता है, किसी स्टेट में कम होता है, और जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ क्यों कम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सब जो चर्चा है इज़ रिलेटेड टू द स्टेट कैपेसिटीज़। वो जो स्टेट है वो स्टेट में मनरेगा को लेकर के कैपेसिटी क्या है और उनकी ज़रूरतें क्या है, ये समझ कर आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और वॉट एवर एजेंसी हमें ये तय करना चाहिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट का कौन से तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इसका मतलब हर वक्त पैसा नहीं होता है, पैसे से ज़्यादा भी अलग तरीके के सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। और अभी हमने देखा कि ये BRLF का समन्वय प्रोग्राम से लेकर के अभी तक हमने जो भी सुना, ये सब बताता है कि कितने तरीके के लोगों को एक साथ आना पड़ता है तब जाके कुछ सक्सेस हमें मिलता है। इसलिए स्टेट कैपेसिटीज़ पे काम करना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। और इसमें दूसरी बात जो आई, जो जहाँ जहाँ सक्सेस की बात हुई है, जहाँ जहाँ हमने देखा है कि MGNREGA का जो उद्देश्य है वहाँ तक नरेगा का इस्तेमाल हुआ है, वो है जहाँ पर गांव के लोगों ने उसमें भागीदारी रखी है। दो तरीके से, एक जो मजदूर है वो भी है, जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जहाँ पर मेट्स है या विलेज में ही जो ग्राम रोजगार सेवक है, मेट्स है, ये जो फंक्शनरीज उसी गांव से या फिर उस क्लस्टर के गांव से आते हैं, तब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन करता है उस सब के लिए। इसलिए विलेज लेवल के फंक्शनरीज होना और विलेज के सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हम पहले वेज करके देखते थे इसे, फिर जाके हमने उसका एसेट्स का ध्यान रखना शुरू किया, और उसके आगे जाकर हम अभी पार्टिसिपेशन या एम्पावरमेंट को लेकर के जो हो सकता है उस पर ध्यान देने लगे हैं, और इसी से ये काम आगे बढ़ सकता है। तो कन्वर्जेंस को लेकर के हम सोचते हैं तो ऐसा कन्वर्जेंस नहीं चाहिए कि सिर्फ वो मिनिस्ट्री के लेवल पे हो या फंड यूटिलाइजेशन के लेवल पे हो, लेकिन ज़्यादातर वो होना चाहिए कि गांव में जो फैमिली है उनको किसी ने समझो एनिमल शेल्टर बनाया, तो उनका जो काम है वो एनिमल हस्बेंड्री के साथ कन्वर्जेंस में हो सकता है। पॉन्ड का हमने देखा ही है, हॉर्टिकल्चर के साथ होता है, फिशरीज के साथ हो सकता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है। तो हर एक एसेट को लेकर के हम मैप कर सकते हैं कि ये किसके और किस एसेट के वजह से इसका वैल्यू एडिशन होगा, लेयरिंग होगा, और इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पर मिल सकता है। ऐसा हम मैपिंग कर सकते हैं, और वो गांव के स्तर पर, इंडिविजुअल फैमिली के स्तर पर कन्वर्जेंस की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें फिर स्टेट लेवल प्लान्स को लेकर के आता है, क्योंकि होता क्या है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का खुद का एक स्टेट प्लान होता है, और फिर हम बोलते हैं MGNREGA में से ये कन्वर्जेंस में होना चाहिए, लेकिन उनके प्लान में है ही नहीं वो, तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे। इसलिए ये पहले से सोचना चाहिए कि स्टेट लेवल में डायरेक्शन हो, लेकिन विलेज लेवल पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, ये विलेज लेवल पे और इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे ही हो सकता है। मुझे लगता है हम जैसे ये प्लानिंग को लेकर के, जैसे वाटरशेड में हम कहते हैं कि जब तक हम रिच टू वैली नहीं सोचते, माथा टू पायथा नहीं सोचते, तब तक उसका काम अच्छी तरीके से क्वालिटी का नहीं हो सकता। वैसे MGNREGA के प्लानिंग में हम जब तक गांव से लेकर के स्टेट और स्टेट से लेकर के दिल्ली तक नहीं जाते, तब तक ये काम, हर एक रुपया का जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक बात मुझे रखना बहुत ज़रूरी लगता है कि हम गरीबी निर्देशांक की बात कर रहे थे। एक बहुत ज़रूरी जो गट है हर एक गांव में, वो है अल्पभूधारक, जिनके पास 2 एकड़ से या 5 एकड़ से कम ज़मीन है
और जो सिर्फ खरीफ का काम करते हैं, सिर्फ खरीफ में ही खेती कर सकते हैं क्योंकि वो वर्षा आधारित खेती करते हैं। तो ये जो फैमिलीज है इन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में एमजी नरेगा को छोड़ के इतने बड़े पैमाने पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाने वाला दूसरा प्रोग्राम स्मॉल एंड मार्जिनल रेनफेड फार्मर्स के लिए है नहीं। तो ये जो है, ये पूरा प्लानिंग का फोकस और ओरिएंटेशन हम जब तक छोटे किसान जिनके 5 एकड़ से कम ज़मीन हो और जो वर्षा आधारित खेती कर रहे हो उनको लेकर के जितना ज़्यादा प्लानिंग करेंगे उतना अच्छा ये फ़र्क रहेगा। बाकी मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें कहनी है। एक तो इन सब में एक था लेयर क्लाइमेट चेंज का जो उभर के नहीं आया, वो है कि हम जो भी काम करते हैं मनरेगा को लेकर के, इसमें हम लोकल ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो नॉलेज भी है और पत्थर मिट्टी भी है वो लोकल है, बाहर से कुछ नहीं लाने की ज़रूरत है। तो ये जो विपुल सृष्टि है वहाँ से ही काम हो सकता है और वहाँ पे ही ख़त्म हो सकता है। इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है उसके लिए ये बहुत बढ़िया हमारे पास एक उत्तर हो सकता है। मनरेगा की मुक्ति के बारे में बात हो रही है क्योंकि 20 साल हो गए हम इस पर काम कर रहे हैं। ये सही बात है कि गांव से गांव तक हम ये देख रहे हैं कि उन्हें शायद नवंबर से मनरेगा की ज़रूरत थी, अब फरवरी से है, आगे जाकर के शायद सिर्फ अप्रैल मई में होगी, ये हो सकता है। लेकिन मनरेगा का एक दूसरा ज़रूरत का वक्त ये है कि जब डिज़ास्टर्स होते हैं, जब अकाल आएगा, जब डिज़ास्टर्स होंगे, तब मनरेगा की भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। तो मनरेगा शुड विदर अवे, ये तो हम सोचते ही है, लेकिन मनरेगा को भूलना भी नहीं चाहिए। ये भी उतना ही मुझे ज़रूरी लगता है कि आज से 10 साल बाद ये गांव का विकास क्यों हुआ। आज शायद वो गांव में मनरेगा नहीं चल रही है, लेकिन ये गांव में विकास क्यों हुआ, किसके वजह से ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई, किसके हाथों से ये विकास हुआ, ये भी होना, मेमोरी में रहना, हमारे सामने रहना बहुत ज़रूरी है। तो गांव-गांव में इसकी कथाएं भी हो, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।